Dubai wants to be on top. Dubai का plan है by 2040 they will double up their economy. रोड्स मैं कल ही टैक्सी वाले ड्राइवर से बात कर रहा था। उसने बोला 9 महीने में उसने अपनी गाड़ी 1,30,000 किलोमीटर चला दी। यार ये तो इंडिया में पॉसिबल ही नहीं है। दुबई के अंदर you just have to pay 20% of the property value. वो पे करने के बाद तो property is on your name. From India, you're coming to Dubai, you need time to adjust. Safety also, of course. हमें इतनी आदत नहीं है इंडियन होते हुए कि इतना सेफ रहे. अभी के टाइम पे साउथ में पैसा नहीं डाल रहे, you are similarly losing an opportunity to buy something in Palm Jumeirah. रिलीजन वाइज यार रिलीजन बायस, आप तो यहाँ पे कंट्री बायस नहीं है. It doesn't really matter if you're a Hindu or a Muslim. You know what the other train is coming, which is connecting each and every emirate, like a Mumbai local for people. Of course. एक एमिरेट से दूसरे एमिरेट ट्रैवल करेंगे सुबह and शाम को अपने घर. अपने इंडिया में कहा होता है ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है. यहाँ पे खाली दिमाग होता ही नहीं है, तो शैतान का घर कहाँ बसेगा. जब हमने शुरू किया तब से हम सुनते आ रहे हैं that दुबई मार्केट इज अ बबल. ये बबल तब तक बस्ट नहीं होगा जब तक दुबई गवर्नमेंट चाहती नहीं. हाय एवरीवन, वेलकम टू माय टुडेज पॉडकास्ट ऑन यूएई अनलॉक्ड। आज मैं ऐसी दो एरियाज़ के बारे में बात करने वाला हूँ यूएई में जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और कंफ्यूजिंग है। इसी के साथ साथ ये एक फाइनेंशियल डिसीजन है विच इज़ रियल एस्टेट एंड बिजनेस सेटअप। और आपको मालूम है जब भी फाइनेंस इन्वॉल्व है यू शुड ऑलवेज गो टू अ एक्सपर्ट। इसीलिए आज मेरे साथ दो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स है। वन इज भारत जो बिजनेस सेटअप का एक्सपर्ट है एंड वन इज शुभम जो कि रियल एस्टेट का एक्सपर्ट है। ये दोनों मुझे आज मदद करेंगे इन दो एरियाज को नेविगेट करने के लिए और आपके जो सबसे ज्यादा सवाल होते हैं उनको आंसर करने के लिए। सो हाउ आर यू गाइस डूइंग? All good, right? All good. How are you? नाइस। सो भरत, आई वांट टू स्टार्ट विद यू। ये आपने फर्स्ट ऑफ ऑल फील्ड बिजनेस सेटअप की कैसे चूज की और आप इस फील्ड में कितने टाइम से काम कर रहे हो? See, we have been working in this field for almost 5 years, almost half a decade, and बिल्कुल ये फील्ड थोड़ी यूनिक है if you think about it, but the intention was to help investors move here in Dubai. So initially when we came here, we realized कि लोगों को बहुत दिक्कत आती है कि कैसे वीजा प्रोसेस करें, क्या क्या फॉर्मेलिटीज है, कैसे कंपनी खोलें, what type of company to choose, etc etc. The thing is, कोई भी डिसीजन लेने से पहले आदमी को 100 चीजें नाप तोल लेनी पड़ती है, and then after you make a decision, then you have to actually follow the right steps, right? So in that way we had this thing in mind कि मेरे को इसी फील्ड में जाना है, and I would like to know more investors, know their lifestyle and their decision making capacities, capabilities in fact, and how to get it out in the market. So that's why we chose this field. अमेजिंग यार, सही, नाइस। और मुझे ये बताओ कि देखो दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड फील्ड। सो कोई भी अगर बिजनेस रजिस्ट्रेशन करना चाहता है, आई वुड लाइक टू गो विद समवन हु इज एक्सपीरियंस इन इट। सो जस्ट टेल मी लिटिल बिट अबाउट योर एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। I've been, like I told you, since I moved here, I've been working in the same field. So, there is experience, but I'll say you need to be updated about the latest news, what's happening in the UAE, in terms of, visas, in terms of licensing, in terms of anything and everything, the government rules and everything. The entire thing is, UAE government keeps on changing the rules to make it better, right? So that people are more comfortable in the scenario in the UAE. So we have to stay updated, tell people what exactly needs to be done, get it done for them, and then of course we stay with them for the long term as well in order to assist them throughout their journey in the UAE. Okay. So इसमें बस मेरे पास एक क्वेश्चन है कि compared to other countries, this is a bit more complicated for a normal people to form companies in UAE compared to, say, for example, I tried to set up a company in UK. I was able to do it alone, but here I will always need an expert. See, the entire thing is, of course, you need an expert. It's not like you actually need an expert. I would suggest that you want an expert. The reason behind that is if you go ahead and start a company in the UAE,
It's a very simple process. You just have to go to the right authorities, file up right paperwork, and get things done, right? But the entire thing is, you guys know, like people from coming from all across the globe don't know the exact procedure. Until unless you don't know the right procedure, how to do it, you won't be able to do it. And of course, Google and everything has the information, of course, but most of them have old information. And like I told you, UAE keeps on changing rules, so you need to be updated on the recent scenarios that are going in the current market. Right, and that's why you need a That's why you need an expert, people like us who can guide you through the journey, not only guide you, but tell you what is the right and wrong so that you can make a proper decision between choosing the right free zone, right mainland, right company, authority, right visa for yourself, and then many more things. Yeah, and exactly. वही चीज मुझे मतलब डिस्कस करनी थी कि there are so many different options of forming different types of companies in UAE. It's like you don't know which is the right one for you. So वो basically you as an expert can help someone to find which is the right type of company they should form. Of course. So that's what we do for a living. The entire thing is, let's say you want to set up a company, right? So you come to people like us, experts like us, and then you take all the information. Like we take your information. For instance, we ask you, what type of company are you planning to start? What is the outcome that you're looking at? What is the activity that you will be doing in the market? And how many partners will be there in the company? How many employees are you planning to hire? Are you even planning to get a physical office? You're planning to get a virtual office? Your country of operations will be in India or in the UAE. These all factors are very important for us to decide what type of company you should get. Once we get this information, we tell you about everything in detail, and we create a custom quotation for you in terms of what exactly you have told us to do, and then that custom quotation will be sending it to you, and then you make the right decision if you would like to go for that, or you have something else in your mind that we might have missed. Yeah. So once it's not a one-day process, right? Opening the company, in fact, is a one-day process, but getting this information out of a client and telling them this information, going back and through, it takes around 2 to 3 working days, and then we, get things well established between the client and us, and then we share them the right thing, right options to go ahead with. Nice, nice, and I get it. और इसी से रिलेटेड जो मेरा दूसरा सवाल है वो शुभम निकले. Shubham, if say someone wants to work in UAE, the second then the problem comes is stay. Where should you live? कि आपको कहाँ रहना चाहिए? आपको अपना stay कैसे figure out करना है? Which is one of the basic needs of any home. So मुझे उसमें आपको जानना है कि क्या benefits है UAE में रहने के लोगों के लिए? See, first of all, if you are living in UAE, अगर आपका investment 2 million के above है, तो UAE gives you a golden visa, firstly. And if you are having a salary of more than 30,000, again, you get a golden visa, which is valid for 10 years. So, UAE government allows you to stay in for 10 years and invest more and more into businesses as well as real estate. And you can make money through real estate, as government already have a lot of plans regarding real estate till 2040, which they have stated on K2040 plan के अंदर जो है. So that's how the people make money, and they come here to stay, but at the end they end up being an investor as well. Nice. और मैं ये देखता हूँ कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है रियल एस्टेट इंडस्ट्री को. मतलब दुबई गवर्नमेंट या यूएई गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल इज वेरी सपोर्टिव टू द रियल एस्टेट इंडस्ट्री. सो इज दिस अ गुड थिंग फॉर इन्वेस्टर्स कि उनका पैसा सेफ है? लाइक व्हाई इज दिस डिफरेंट कंपेयर टू अदर कंट्रीज? See, basically in Dubai, if you are talking about Dubai के पास या तो tourism है या फिर real estate है. Okay, these are the major earners for the government of UAE. So basically, अगर कोई बंदा यहाँ पे आके इन्वेस्ट करना चाहता है, so वो openly आके इन्वेस्ट कर सकता है. They don't have to worry about anything because they are backed by the government. There are some times when they don't go with good developers. तब issues आते हैं. Rather than that, there are no issues till now. And if you are going with good developers like MR, Dubai Properties, all that, these are the big government developers. अगर आप इनके साथ जा रहे हैं तो you get a good returns on the properties as well as you get a good lifestyle with the capital appreciation you get. So that is the thing. और
अभी आप बोल रहे हो गवर्नमेंट बैक्ड है, तो अगर जैसे कोई ऑफ प्लान में कोई प्रोजेक्ट करता है और इफ से फॉर एग्जांपल अ डेवलपर vanishes, इज देयर मनी सेफ और हाउ डज इट गो? See, as India is also having RERA, यहाँ पे भी RERA का बहुत बड़ा रोल है. It's just यहाँ पे क्या है ना, जब इन्वेस्टर आता है, they don't have proper information about payment plans, developers and everything. So उनको उस चीज में हेल्प की रिक्वायरमेंट रहती है that what are the payment plans and firstly what is a payment plan. Payment plan क्योंकि इंडिया के अंदर the property is registered in your name when you have paid fully the 100% amount. दुबई के अंदर you just have to pay 20% of the property value and then the 4% daily which is the government charges. वो पे करने के बाद the property is on your name. So जब पेमेंट प्लान आ जाता है it means आप पैसा दे रहे हो किसी ऐसी चीज का जो अभी तक बनी भी नहीं. हाँ, करेक्ट. ओके, तो गवर्नमेंट को सबसे बड़ी चीज ये बैक करनी थी कि आप किसी ऐसी चीज में पैसा लगा रहे हो जो है ही नहीं. तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक एस्क्रो अकाउंट इंट्रोड्यूस किया. एस्क्रो अकाउंट इज द सेफेस्ट थिंग टू इन्वेस्ट इन. जब आप एस्क्रो में अपना पैसा देते हो इट मीन्स यू आर बैक्ड बाय द गवर्नमेंट. आपको गवर्नमेंट हेल्प करेगी दैट योर मनी इज सेफ विद अस. इफ द डेवलपर गोज अवे वी विल स्टिल पे यू बैक योर मनी. दैट इज द थिंग. नाइस. सो बेसिकली मेरा पैसा सेफ है गवर्नमेंट के पास. ऑब्वियसली. इट डज नॉट गो टू द डेवलपर, so I can easily invest in an off-plan property. Sure. नाइस नाइस नाइस. और सेम चीज़ मुझे आपसे भी पूछनी थी कि जैसे मैं अगर दुबई में रहने आता हूँ, सो क्या मेरी इनकम, जैसे आई एम एन इंडियन सिटीजन, सो इज माई इनकम गोइंग टू बी टैक्स इन इंडिया कि नहीं? See, that completely depends. If you're staying here, अगर आप यहाँ पे properly move हो चुके हैं, you stay here, you earn here, your family is here, then of course your income will not be taxed back in India. The simple reason behind that is you're earning here and you're spending here. Everything is, you're like basically you're a UAE resident, right? You have an Emirates ID, you have a visa, you are a complete UAE resident. So considering this, back in India, you are an NRI. So जैसे कोई और कंट्री में भी अगर आप जाके रहते हो more than 182 days, you automatically become a non-resident, and same goes in the UAE. So अगर आप 182 days से ज़्यादा बाहर रह रहे हैं, so you're in non-resident in India. Therefore, you don't pay any taxes back in India on the income earned within the UAE. But of course, if let's say आपकी इंडिया के अंदर प्रॉपर्टीज है या रेंटल इनकम है, कुछ भी है, so of course you'll have to pay taxes on that income that is being generated from India itself. But from Dubai, there is no income tax. Amazing. दूसरा आपकी बातों से मुझे रियलाइज हुआ कि वी गेट एन एमिरेट्स आईडी. सो एक एमिरेट्स आईडी लेने का एक इंडियन सिटीजन को क्या बेनिफिट है? See, benefit, if you ask me क्या benefit है, benefit ये है कि आप UAE के अंदर there are multiple ways to get an Emirates ID. One of the normal ways is to either open a company, be an employee here, or go through property investment. Like Shubham just told you that you can get a golden visa through a property investment. So same way, you can also get a normal residency through company and being an employee. Now, what are the benefits of this Emirates ID? You can stay in the UAE for the entire duration. You can enjoy the safe space that UAE has to offer, of course. And along with that, you get access to multiple other countries as well. For instance, Georgia, there's Azerbaijan, and many more other countries. Nice. You get access to that. Along with that, you get to enjoy the benefit of being an NRI. If you're staying, of course, 182 days or above outside India. So, and the benefits include taxations and everything. Plus, UAE के अंदर अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे तो taxation ना के बराबर है compared to other countries. There's just two types of taxes: VAT and corporate tax. VAT and plus zero income tax as well. So VAT is 5%. I think that's one of the lowest anywhere in the world. And 9% corporate tax, again being one of the lowest in the world. Corporate tax के भी अगर आप देखोगे तो it's basically after you cross a net profit of 375,000. So making it much more affordable for SMEs, new companies that are being registered in the UAE. नहीं, सही है. So जैसे आपने बोला, I can access all of these countries. So I can like visa free travel to these countries. It's a visa on arrival.
Nice. Some of the countries are visa free as well, and some are on arrival visas. Nice, That way. nice. Or 375k dirhams. So how much is that in INR? Do you know the Let's say it's almost $100,000. एक $1 लाख के आसपास हो जाता है अमाउंट इंडिया के करीब ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास अगर आप देखोगे तो 1 करोड़ के आसपास आ ही जाता होगा अमाउंट एंड उसके अंदर भी ये है कि आपके नेट जो प्रॉफिट है दैट मीन्स आपके सारे एक्सपेंसेस हटाने के बाद जो आपका 1 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है उसके ऊपर अगर आपने कुछ प्रॉफिट किया है तो उस पे 9% लगेगा रेवेन्यू पे नहीं है, रेवेन्यू पे नहीं नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट पे फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर आज मेरी कंपनी के अंदर नेट प्रॉफिट हुआ है 4 लाख dirham का आफ्टर ऑल द एक्सपेंसेस बेसिक खर्चे एम्प्लॉइज की सैलरीज ये सब निकालने के बाद तो मैं सिर्फ 25,000 जो मैंने 4 लाख यानी 3,75,000 के ऊपर कमाया है इन दिस केस 25,000 उसके ऊपर 9% दूंगा उसके अलावा आई डोंट हैव टू पे अ सिंगल पेनी the government doesn't require us to pay anything else. This is the ease that you get in the UAE. अमेजिंग. और पर्सनल इनकम इज नॉट टैक्सेबल. लाइक जब मैं कोई भी सैलरी उठाऊं मेरी कंपनी से, Correct. दैट इज कंप्लीटली टैक्स फ्री. That is completely tax free. So you get 0% taxed on it. There's basically 0% income tax in the UAE. So you get the benefit of that, of course. अमेजिंग. सो इसी से मुझे शुभम आपसे पूछना है कि काफी लोग प्रॉपर्टी लेने के लिए इसलिए डरते हैं शायद यूएई में, या जो मैंने एटलीस्ट सुना है कि यूएई डजंट गिव यू लाइफ टाइम रेसिडेंसी. आपको गोल्डन वीजा है 10 इयर्स का. तो अगर कोई प्रॉपर्टी ले रहा है, सो व्हाट इज द माइंडसेट वन शुड हैव व्हाइल बाइंग द प्रॉपर्टी? क्योंकि 10 साल बाद क्या? सी फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी कोई इन्वेस्टर मार्केट में जाता है तो उसका सबसे पहला पॉइंट ये होता है आई हैव टू मेक मनी आउट फर्स्ट थिंग, हाँ. बिकॉज दुबई इज सेफ इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बट दे डोंट नो टिल व्हेन. जो हम लोग उनको बताते हैं दैट इट इज सेफ टिल दिस टाइम. तो प्रॉपर्टी 10 साल का जब वीजा मिलता है सो इट्स नॉट लाइक कि आपने वो 10 साल के अंदर वो प्रॉपर्टी ली और आपने बेची ही नहीं. इफ यू वांट टू सेल इट यू कैन सेल इट. तब आपका वो वीजा वहां से कैंसिल होकर आप जो दूसरी प्रॉपर्टी लेते हो उस पर ट्रांसफर हो जाता है. सो इट stays till 10 years but you can extend it by buying more and more properties. So every time you buy, basically you renew your golden visa. Hey, and plus I would like to add on, we know many people that have been living here since I think 1985. Yes. And earlier तो ये concept ही नहीं था 10 साल की वीजा 2 साल की वीजा 3 साल की वीजा मिलती थी लोगों को. So they have been still working in the UAE and living their life, right? So it's been almost what 30 years now, and even after 30 years, if the government is allowing you to renew your visa, it's not a big deal, right? You can always renew your visa and keep living in the UAE. So जो जितना आप टाइम रहते हो उतना मेरे ख्याल से इजी हो जाता है यूएई में रहना, if I'm not wrong. Of course, you see, आप कोई भी नए घर में शिफ्ट होते हो तो आपको थोड़ा टाइम तो लगता ही है. खुद का नया घर भी है तो it takes time for you to adjust according to things, locality and everything, right? So it's just like that. From India, you're coming to Dubai, you need time to adjust with the safety also, of course. हमें इतनी आदत नहीं है इंडियन होते हुए कि इतना सेफ रहे. So there's one of the other advantages. So it takes time to adjust, but once you're adjusted, most of the people don't even go back to their home countries. हाँ, इसी के साथ मेरा मेन पॉइंट ये था कि काफी टाइम में ये लोग जैसे यूएई में कभी-कभी ये लोग काफी कंट्रीज के वीजा कैंसिल भी करते हैं, नो मोर इनकमिंग. तो इसमें ये नहीं होता जो एग्जिस्टिंग यहाँ पे है उनको वापस जाना है. नहीं, easily get Exactly. only the new people that want to come may get stopped sometimes. See, the reason why UAE government does that is to ensure that people are still safe, right? Safe. They're not doing any transactions or anything that is illegal in nature, right? So the reason why they do this is very simple, to avoid certain scenarios where the UAE, the people in the UAE get affected. So ये बहुत कम होता है. Certain nationalities के लिए कभी कभार होता है, but then they come back to normal. And meanwhile जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो अपनी simply visa renew कराते जाते हैं and they continue on staying here. Amazing. तो शिव आपसे मुझे तो स्पेसिफिकली दो सवाल है कि पहले मैंने बहुत सुना है कि यार दुबई की रियल एस्टेट में पहले इन्वेस्टमेंट से पहले थोड़ा समझो कि दुबई की रियल एस्टेट एक बबल है. फर्स्ट ये, और दूसरा ये बबल है क्या, ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? See, when we started our company, Apex Revenue Reality, तो हमने स्टार्टिंग में जब हमने शुरू किया था
तब से हम सुनते आ रहे हैं दैट दुबई मार्केट इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये चीज चलती रहेगी क्योंकि यू आर कंपेयरिंग इट विद डिफरेंट कंट्रीज। आप जिन कंट्रीज से कनेक्ट इनको कंपेयर करते हैं, दैट कंट्रीज आर फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम, और वो फ्री होल्ड ही नहीं हुई थी। दुबई फ्री होल्ड हुए अभी ज्यादा टाइम हुआ नहीं। सो जब यहाँ पे प्रॉपर्टीज बिकनी शुरू हुई तो वो नॉन रेसिडेंट पर्सन, तो यहाँ पे प्राइसेस बढ़ना शुरू, ठीक है। अब लोगों को लगता है कि एक एरिया में अगर प्राइसेस बढ़ चुकी हैं तो दूसरे एरिया की प्राइसेस भी उतनी ही रहेंगी, उससे ऊपर नहीं जाएगी। बट एज यू आर सीइंग कि दुबई मार्केट क्या है, शिफ्ट कर रहा है टुवर्ड्स साउथ, टुवर्ड्स नॉर्थ साइड। एग्जांपल तो जैसे इस चीज जैसे आपने अभी देखा होगा दैट दुबई इज कमिंग अप विद द बिगेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। सो उस एयरपोर्ट के आसपास अगर आप डेवलपमेंट देखोगे, राइट नाउ इट इज एट 1600 dirhams per square feet, जो एयरपोर्ट के आसपास, which was started at 980 dirhams per square feet। तो जब वो स्टार्ट हुआ था तब से अब तक सिर्फ और सिर्फ 1600 बढ़ा है। एंड इफ यू कंपेयर इट विद एनी ऑफ द कम्युनिटी व्हिच इज नियर बाय वाटर, दैट इज ऑन 4500 dirhams per square feet। तो अगर हाँ ये बबल है, ये बबल बर्स्ट होगा, बट नॉट नाउ। ये बबल तब तक बर्स्ट नहीं होगा जब तक दुबई गवर्नमेंट चाहती नहीं। एज वी हैव सीन लाइक इन मल्टीपल years it happened कि मार्केट नीचे गया, बट मार्केट जब ऊपर जाना शुरू हुआ 2 साल के अंदर डबल हाइटेड गया हर बार। सो मार्केट नीचे जाता है, बट फॉर द प्रॉपर्टीज विच आर रेडी, जो नॉट रेडी प्रॉपर्टीज हैं उनका मार्केट कभी नीचे नहीं जाता क्योंकि वो कभी बन के खड़ी नहीं। सो दैट इज द थिंग। ये बबल बस्ट होगा, फॉर श्योर होगा, वो किसी दिन तो होगा, बट it is not in next 10 years because Dubai has different plans with next 10 years। मतलब इस साइकिल बाकी है, जो अप ट्रेंड का साइकिल बाकी है। आप देखो कि दुबई गवर्नमेंट ने अगले 2040 तक बता दिया कि हम क्या क्या डेवलपमेंट लाने वाले हैं, और उन्हें एरियाज बता दिए कि हम यहाँ डेवलपमेंट लाएंगे, which comes with water, which comes with land। हर जगह से वो इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं एंड इम्प्लीमेंट हो रही है चीजें। आज के टाइम पे अगर आप साउथ में जाओगे, दे आर कमिंग अप विद डबल साइज ऑफ पाम जुमेरा विद पाम जबल अली। They have moved all their Port Rashid to Port Jebel Ali, which is the biggest man-made port in UAE। So हर एक चीज साउथ की तरफ मूव करके, इट मीन साउथ इज येट टू ग्रो। अगर आप अभी के टाइम पे साउथ में पैसा नहीं डाल रहे, so you are similarly losing an opportunity to buy something in Palm Jumeirah। अभी के टाइम पे पाम जुमेरा अगर आपने उस टाइम पे खरीदा होता, तो you will be sitting in a like lavish lifestyle, but right now that opportunity is with South। So मतलब आपको like this is like an investment advice जो हमने बात की कि this is not a bubble जो फट रहा है, this is basically a market जो ऊपर नीचे जाता रहता है। But that's common in every country, isn't हाँ। it? कि ऊपर नीचे जाना किसी भी कंट्री के अंदर बहुत कॉमन है। Common है। You just have to get into the right time कि आप कौन से ट्रेंड में घुस रहे हो। Exactly। Correct, correct। दूसरा आपने जो बोला कि जो दुबई साउथ में अगर लोगों को फोकस करना चाहिए, सो गवर्नमेंट क्या इस चीज को अभी इसमें प्रॉपर घुस चुकी है? व्हाट इज द टाइमलाइन दैट यू आर एक्सपेक्टिंग दुबई साउथ टू प्ले आउट? See, firstly, वहां पे आपने एक्सपो का नाम सुना होगा, एक्सपो 2020। It happened in South, which is just next to the airport। आपका एयरपोर्ट का ही एक कॉर्नर वाला पार्ट है जिसके अंदर एक्सपो है। दुबई इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स दैट एक्सपो सिटी, ठीक है। Government is spending a lot on that expo city particularly because they want their trades to be from that particular area। After that, अपना DIFC है। DIFC is the location जहाँ पे ट्रेड सेंटर की वजह से बहुत ज्यादा हाई मार्केट है, राइट। वहाँ पे प्रॉपर्टीज की वैल्यू बढ़ी है जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेड सेंटर। अगर वही ट्रेड सेंटर साउथ साइड में कहीं शिफ्ट कर दिया जाए तो ऑब्वियसली वहां पे भी ग्रोथ चांसेस हाई हो जाएंगे। So Dubai is planning to shift the trade center to Expo, which is 1.4 in kilometers। That size of trade center with the north and south hall। अगर इतना मार्केट वहां पे शिफ्ट कर दिया जा रहा है, अभी कितना है जो ट्रेड सेंटर है? अभी वाला is half of the what we are seeing। So आपने देखा होगा इवेंट्स होते हैं, the DIFC is full, like there is a huge crowd, but at that location there is nothing। So इस वजह से गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू मूव देयर नाउ। अगर कोई भी कॉन्सर्ट है, कोई बड़ा कॉन्सर्ट है, हैव यू सीन एनी बिग कॉन्सर्ट इन दुबई? You only have this Coca-Cola arena जिसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है। एक्सपो इज कमिंग अप विद
a full-size open auditorium with a capacity of 50,000 people. And यदि वो बन गया सारे टूरिस्ट को जगह चाहिए रहने के लिए आज कोल्ड प्ले हुआ, उसके बाद दिलजीत दोसांझ हुआ, ये सब कॉन्सेप्ट्स कहाँ पे हुए हैं? अबू धाबी। Why? Because दुबई के पास ऐसी होस्टिंग प्लेस ही नहीं। But Dubai is coming up with these places which are coming in Expo. Expo के अंदर they are coming with capacity of 50,000 and one small one with a capacity of 30,000. Plus they have that Vassal Dome. Vassal Dome you already know. It's a Guinness Book of World Record holder dome, which is the largest immersive dome. So अगर ये सब डेवलपमेंट्स और ये सब किसी और ने नहीं बनाया, ये गवर्नमेंट बना रही है. Why they want that area to get good appreciation ताकि वो बूस्ट हो. गवर्नमेंट ने जितना स्पेंड दुबई के सिविल सिस्टम पे नहीं किया, उससे ज्यादा स्पेंड सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपो के ऊपर किया उन्होंने. दे आर कमिंग अप विद द बिगेस्ट मार्केट इन यूएई ऑफ चाइना in that south location. उसके बाद भारत मार्ट, they have signed with भारत मार्ट and that is on the same location of south. तो अगर इतनी चीजें साउथ साइड में आ रही तो ऑलवेज अप्रिसिएशन के चांसेस वहां पे बहुत हाई होंगे. प्लस अब बात आती है डेवलपर्स. आप बात कर रहे हो कि वहां पे मेन चीज क्या, मेन ट्रेंड चल रहा है कम्युनिटीज का. और दुबई में हमेशा जब ट्रेंड चलता है वो कम्युनिटी ट्रेंड है. चाहे आप गोल्फ फेसिंग देख लो, वाटर फेसिंग देख लो, जब भी कम्युनिटी होती है ना तो सबसे ज्यादा अप्रिशिएशन आता है. आपने अलबरारी का नाम सुना होगा. अलबरा इज द मोस्ट अप्रिशिएटेड कम्युनिटी. व्हाई? बिकॉज इट वाज अ न्यू कांसेप्ट ऑफ नेचर लिविंग. ठीक है. वैसे ही डनाक लगून्स हो गया, इसके बाद आपके ओएसिस हो गया, ये सब अप्रिसिएशन पे. क्यों? क्योंकि इट्स अ कम्युनिटी व्हिच इज बेस्ड ऑन सर्टेन थीम्स. और सब कुछ साउथ में है. साउथ लोकेशन इज गोइंग टू ग्रो. अगर अभी पैसा नहीं डाला इट विल बी अ वेरी बैड थिंग फॉर पीपल. आपने जो बातें की कि जो दुबई की साइकोलॉजी है, और मैं भरत को ही पूछूंगा कि यहाँ पे हर चीज होती है बड़ी, सबसे बड़ी, सिर्फ बड़ी भी नहीं. ट्रेड सेंटर बनाना है सबसे बड़ा बनाना है, मार्ट बनाना है सबसे बड़ा बनाना है. और टावर आपने देखा होगा, हाँ. हाईएस्ट टावर. दे वांटेड टू बी टॉलेस्ट, दैट्स व्हाई उन्होंने अभी तक उसका हाइट अनाउंस नहीं किया. सो ये साइकोलॉजी क्या है? और आई थिंक दिस इज कंटेजियस. हर किसी को मन करता है यहाँ पे बहुत बड़ी चीज करने का. एग्जैक्टली, इट्स ऑल अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर. देखो, अगर आज आपके पास बड़ी इमारतें हैं, बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बेटर रोड्स हैं, better infrastructure है, you have public transportation, buses, metros, various other public transportations. How does this help the economy? Of course, it's going to help the economy to grow at a massive scale. अगर आपके पास ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, तो आप कोई भी इकोनॉमी सर्वाइव नहीं कर सकती है. एंड यूएई इज क्वाइट फोकस्ड ऑन दिस. द रीजन व्हाई दे बिल्ड the tallest towers, tallest buildings, massive places for people, auditoriums and everything. It's not just to attract tourism. Of course, it is a part of it that people come here, celebrate, enjoy their basic life, live in a better lifestyle, of course. But along with that, it helps the economy to grow. It's in terms of economy, I mean financially, like अभी इन्होंने बताया भारत मार्ट आ रहे हैं, so bringing that Bharat Mart to the UAE, of course, it's going to benefit the economy, right? So not just economy of the UAE. Again, back in India, it's going to help the economy back in India as well. क्योंकि पैसे तो घूम फिर के किधर ना किधर इंडिया में भी help करेगा ही, आएगा ही. So this is one of the most important reasons why the sheikhs over here, the king over here, takes care of these things. साइकोलॉजी बताता है इनकी गवर्नमेंट में कि how much they are vision focused. Of course, yes. और मेरे ख्याल से वो चीज हम सब लोगों में भी आती है जो रह रहे हैं यहाँ पे. we have to strive for the best. Exactly. मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि जैसे back in India, when you go back in India, you will notice people are sitting there having a chit chat over tea, पान की तड़ी, ये सब बैठ के बातें कर रहे हैं. In Dubai, these scenarios are very rare to see. People are more focused. People are more. कोई भी अपना घर छोड़ के अगर यहाँ पे आ रहा है तो of course they need to do something special in their lives, right? They are running across, they're doing, even if it's a corporate job or a tier 2 job, whatever it is, they're doing it with hard work.
They're doing it with proper rules, regulations that they need to follow, and they're succeeding. You might have heard thousands of Indians have become billionaire here. It's not just like investments and everything. Of course, they have invested, but investment के लिए भी तो पैसा चाहिए होता है. सही बात. पैसा कहाँ से आएगा? हाँ. Hard work. So that's what they did, and they have risen to that point where they can, now enjoy their lifestyles. और ये हार्डवर्क का मोटिवेशन आता है इस जगह. Exactly. आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे, लोगों को देखोगे, लोगों जैसे जिस कम्युनिटी में आप रह रहे हो, सारे लोग अगर भाग रहे हैं तो यू ऑल्सो फील लाइक रनिंग. सो वही एक फर्क पड़ता है. और सेम चीज मैंने यूके में भी नोटिस की कि यूके भी बहुत स्लो है. लाइक आराम से करो, धीरे धीरे करो. दुबई और उनका इतना एस्पिरेशन नहीं है. एस्पिरेशन सिटी या इतनी बोलते हैं विजनरी सिटी, ये बहुत लाइक it's like a different concept. It's a इसके अंदर like Dubai wants to be on top. Why? Because they want एक विजन है उनका कि हमें टॉप पे आना है, कुछ भी हो जाए हमें टॉप पे रहना है. तो उनको पता है उनका बेसिक क्या है. अगर लोग दुबई आना चाहेंगे और उनको यहाँ पे काम मिलता रहेगा तो दे विल बी ऑन टॉप, बिकॉज इकोनॉमी ग्रो करेगी. दुबई का प्लान है बाय 2040 they will double up their economy, which is in 2040 plan. तो अगर they are growing up their economy, they want places. That's why दुबई अभी आपको expand होता हुआ दिखेगा. आज के टाइम पे पहले शारजा बहुत दूर हुआ करता, अबू धाबी बहुत दूर हुआ करता. Now everything is connected to each other. एक दिन में एक बंदा शारजा से दुबई, दुबई से अबू धाबी पहुंच रहा है within a like couple of hours. तो वो वाली चीज जब कनेक्टिविटी ये सब चीजें अभी एहतियात रेट है, एहतियात रेट इज कमिंग व्हिच इज कनेक्टिंग ईच एंड एवरी एमिरेट. एंड जब ये हो जाएगा सो इट इज लाइक अ मुंबई लोकल फॉर पीपल. Of course. एक एमिरेट से दूसरे एमिरेट ट्रैवल करेंगे सुबह एंड शाम को अपने घर. तो कॉस्ट सफिशिएंट भी हो जाएगा एंड इकोनॉमी इससे ग्रो भी करेगी. क्यों? क्योंकि लोगों को रहने के लिए अगर थोड़ा कम पैसे वाली लाइफस्टाइल चाहिए, they can live in some other emirate, and if they want to live the full lavish lifestyle, they can live near the water in Dubai. Amazing. So that is. दूसरा है रोड्स. मैं कल ही टैक्सी वाले ड्राइवर से बात कर रहा था. उसने बोला 9 महीने में उसने अपनी गाड़ी 1,30,000 किलोमीटर चला दी. यार ये तो इंडिया में पॉसिबल ही नहीं है. हाँ, तो उसे 1 लाख किलोमीटर चलाई होगी, बट अगर आप उससे ये पूछोगे कि तेरे को फील हुआ 1 लाख किलोमीटर चलाते समय, ही वुड नॉट. आप थकते नहीं हो यहाँ पे गाड़ी चला के. सिंपल रीजन है क्योंकि रोड इतने अच्छे हैं यहाँ पे. मेरे को इंडिया की तरह गड्ढे थोड़ा नापने पड़ रहे हैं. सो आई एम नॉट शोइंग डाउन टू एनी अदर कंट्री. ऑफ कोर्स आई एम एन इंडियन एज वेल, राइट? बट I'm comparing between one city to the other. When I compare it, I find the difference between the infrastructure of India and the UAE. Of course, India has a lot of population. Control करना काफी मुश्किल है. Develop करना भी काफी मुश्किल है. Land area बहुत ज़्यादा है. UAE is quite small compared to what India is. But it's still, pushing their limit. UAE is pushing their limits to get on top. ये से हमें सीखना चाहिए मेरे ख्याल से. Exactly. कंट्री से कि what we need, where we are lacking. ऐसा कुछ नहीं कि you're fooling in it. But अगर हाँ हमें कहीं अगर हम किसी से कुछ सीख के ग्रो कर सकते हैं, like you said the roads. यार ये roads अगर इंडिया में आए तो मुझे तो लगता है फिर कोई इंडिया से बाहर ना जाए. Hey, my simple question is, let's leave about roads. Let's talk about log here. लोग People, right? So, for instance, an Indian back in India, कचरा फेंकने से पहले 1 मिनट नहीं सोचेगा, नीचे जमीन पे फेंक देगा, right? I'm talking about Indians like me, you and Shivam, yeah? So same Indian अगर इंडिया से दुबई आता है 2.5 घंटा दूर, 3.5 घंटा दूर, 2.5 आदमी चेंज, वो गाड़ी से बाहर कचरा नहीं फेंकेगा. क्यों नहीं फेंकेगा? It's because of the rules and regulations. He knows अगर मैं आज कचरा फेंकता हूँ तो मेरे को 600 dirham का 800 dirham का फाइन आ सकता है. ठीक है? तो डर नहीं है ये. These are rules and regulations that you need to follow, and the UAE government makes it sure that you do it. Else you'll get penalized about it. And of course that's how it should be. See, as I come from a city, I'm BCT from Bhutan. So in that city there are no red lights and green lights. Full like system is like automated. तो जब मैं यहाँ पे आया तब I have to start seeing red lights. I have to start seeing all the
फाइन्स एंड एवरीथिंग। आपने देखा होगा दुबई लाइसेंस हाँ, सबसे मुश्किल होता है, दुबई लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस मिलना सबसे मुश्किल होता है। वाई? बिकॉज यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे चेंज होते हैं, तो वो जरूरी भी है। क्यों? क्योंकि एक सिस्टम में इंसान आ जाता है तो उसको ये पता चलता है कि हाँ यार हर चीज में फाइन लगेगा, तो बहुत मोटा खर्चा है यहाँ मोटा पे, यहाँ सस्ता खर्चा ये नहीं। बहुत जरूरी भी है मेरे ख्याल से। एक्चुअली और यही चीज अगर इंडिया में हो, लाइक द फाइन्स, जब आपने देखा होगा हेलमेट्स के ऊपर 10,000 रुपीज का फाइन लगना शुरू हुआ, तब जाके लोगों ने हेलमेट पहनना शुरू किया। बट अगेन पीपल, वहां पे चीजें चेंज हो जाती हैं वापस हाँ। इजीली। यहाँ पे वो नहीं होता क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है इन चीजों को लेके। दैट्स व्हाई द क्राइम रेट इज लो। सही बात है। जब कोविड हुआ था तब कैसे सबने मास्क पहनना चालू कर दिया क्योंकि गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एग्जैक्टली, और मतलब आप अगर 100 करोड़ लोगों को मास्क पहना सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। सो आई थिंक दैट इज द बेनिफिट इन यूएई कि हमें एक्चुअली रूल्स और रेगुलेशन में लाइफ कैसी हो सकती है उसका एक एक्सपीरियंस मिलता है। आप इतनी अच्छी लाइफ भी जी सकते हो रूल्स एंड रेगुलेशंस में। बिजनेस रिलेटेड मुझे ये बात है कि द बिजनेस एनवायरनमेंट इन यूएई इज very different from India. Yes, it is. Okay, let's start with basics. Business environment जैसे आपने बोला तो start करते हैं कि और मैं business- एक हाँ चीज जी। इसमें ऐड करूंगा कि यहाँ पे जैसे हम रूल्स की बात करें तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स की भी वैल्यू है। यहाँ पे कोई जल्दी से कोई गलत कॉन्ट्रैक्ट में घुसेगा नहीं, और अगर कॉन्ट्रैक्ट में घुस गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट ये करेगा, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट डन इन इंडिया Correct. मेरे एक्सपीरियंस से। Correct. So, see, again, कोई भी अगर आप business, let's say, आप कोई business plan कर रहे हो start करने का, ठीक है, तो we'll start with the basic concept कि पहले क्या करते हैं आप। कोई इंडियन एक्सपर्ट आता है यहाँ पे, यहाँ सॉरी यहाँ कोई इंडियन एक्सपर्ट आता है यहाँ पे, और आते ही सबसे पहले क्या सोचता है। सो आज आप आ रहे हैं दुबई, यू विल थिंक दैट आई नीड टू स्टार्ट अ कंपनी हियर, get my basic registrations done, for instance, visas and everything. So let's say you came to our company, Startbus Global, took an advice, we went through your documentations and everything. We suggested you कि सर आप mainland में, दुबई mainland में company खोले, आपको let's say restaurant खोलना था। So you told you gave us an idea of your business plan. We told you कि sir, let's start with this process. You went ahead with it. Right, so we set up your company, we get everything started up and running, get the necessary approvals from various different departments, Dubai municipality, labor, immigrations, and everything. Once everything is done, we hand over you your visa, and then of course your employees, your family, your first blood, and forthcoming family. We do that for you. After we have done that, now the business actually starts. So this was the basic registration, right? The basic registration might take you around 15 to 20 working days with all your visas and all, with your employees' visas and everything. Because आप दुबई में तो free में रहेंगे नहीं, right? So you need to earn a source of income. Once you do that, now the real business starts. आपने बताया कि दुबई के अंदर comparatively बहुत सारे complications आ सकते हैं, correct? Business करने के। Honestly, ऐसा कुछ भी नहीं है. You just need to follow the rules, regulations, and once you do that, आपका business will run smoothly. The only thing is that you need to find right agencies, right companies to do your stuff. Once you're done with it, then you run your operations, and it's just as simple as getting a car started. अब मुझे बताओ, जैसे मैं इंडिया में बिजनेस खोलता हूँ, चलो बॉम्बे में ये इतनी प्रॉब्लम नहीं, बट आई नो फॉर मेरे को मेरे दोस्तों ने बताया है कि इफ यू ओपन एन ऑफिस और बिजनेस इन इंडिया, जैसे ही आप बिजनेस खोलो ना, 2-4 दिन आपसे पैसे मांगने आ जाएंगे, इस चीज का पैसा दो, उस चीज का पैसा दो। ये क्या यहाँ होता है? और अगर ऐसा लोगों क्या ऐसा मेंटालिटी लोगों की? हमें तो पिछले 5-10 साल से हम देख रहे हैं, ऐसा आज तक तो कभी नहीं हुआ कि anyone walking in our office unannounced and asking for money. Impossible है यहाँ पे। Impossible है, because Dubai, like I told you, rules and regulations इतने strict है। अगर कोई ऐसे कर रहा है तो all you have to do is give a call to the police and everything will be resolved. फालतू की परेशानियां नहीं है आपको इधर कुछ भी बिजनेस नहीं। करने के लिए। See, like I told you, इकोनॉमी को अगर ग्रो करना है तो आपको ease of business देना पड़ेगा लोगों को,
और ईज ऑफ बिजनेस गवर्नमेंट आपको दे रही है। तो अगर आपको ईज ऑफ बिजनेस दे रही है, आपके पास एजेंसीज हैं, जैसे हमारी स्टार्टबिज ग्लोबल जैसी कंपनीज आपके साथ अगर खड़ी हैं, then what do you have to worry about? You just do your business what you're actually planning to do. आप 10 चीजें और सोचोगे तो बिजनेस कब कब करोगे? करोगे? सेकंड जो मेरे पास आपसे मुझे क्वेश्चन पूछा था वो है रिलीजन बायस का, हम्म, कि काफी लोग पता है रिलीजन की वजह से भी इंडिया में वो लोग सही से बिजनेस नहीं करते बिकॉज रिलीजन बायस बहुत चल रहा है इंडिया में। क्या वो बायस यहाँ पे किसी को फील होता है? रिलीजन बायस, आप तो यहाँ पे कंट्री बायस नहीं है। पाकिस्तानी सारे एक सब साथ साथ में काम कर रहे बैठे। हैं। It doesn't really matter if you're an Indian, if you're a Pakistani, if you're a Hindu or a Muslim or a बिजनेस Sikh. करो अपना काम आप बिजनेस करो, अपना काम करो। आज एवरी सिंगल डे, लेट्स से एवरी वीक फ्राइडे को यहाँ पे जुमे की नमाज होती है। हाँ रोड पे गाड़ियां रुक जाती हैं, नमाज करते हैं लोग, एंड अदर रिलीजन्स रिस्पेक्ट दैट, रिस्पेक्ट and that's the whole point of the world. UAE is it's a, how do I say, if it's a vision that other countries should follow. Like you know, आपको एक दूसरी कंट्री से कोई मतलब नहीं है, रिलीजन से कोई मतलब नहीं है, कलर से कोई मतलब नहीं है। It's all about business, work, and what people actually represent. Staying in, you know, doing actual work rather than this stupid silly things. हमें सही बात है। और मैं सेम चीज शुभम आपसे भी पूछूंगा कि इंडिया में ना काफी कम्युनिटीज को मैं चाहते हैं कि यहाँ पे मुस्लिम नहीं आना चाहिए, यहाँ पे हिंदू नहीं आना चाहिए। यू नो आपको मालूम होगा इंडिया में हम लोग कैसा है, कितनी सोसाइटीज में कितना तकलीफ होता है। वो इधर यहाँ पे क्या रूल्स है उसमें? सो यहाँ पे अगर ऐसी बात की जाए तो ऐसा कोई रूल होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोस्ट लव आर इंडियंस। बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखोगे कि सबसे ज्यादा इन्वेस्टर कौन है, तो ऑल ओवर दी वर्ल्ड 26% आर इंडियंस। ठीक है, जिसके अंदर दे डोंट सी द रिलीजन्स। आप इंडियन हो तो भी आपका वेलकम उतना ही होता है, आप रशियन हो, आप यूरोपियन हो, कोई भी हो, आपका वेलकम सेम तरीके से वो होता है। एंड सबके लिए लॉज भी सेम है। मतलब लॉ की वैल्यू है यहाँ पे रिलीजन और वो सब नहीं है। नॉट जस्ट लॉ, आप यहाँ पे ह्यूमैनिटी की वैल्यू है, नॉट लॉ। आप खाली लॉ को अगर आप अपहेल्ड कर रहे हो तो ऑफ कोर्स यू आर रॉन्ग। यहाँ पे ह्यूमैनिटी की वैल्यू है, जो आप करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, आप अपनी मर्जी से करो, बट रिस्पेक्ट द अदर पर्सन रिलीजन। एग्जैक्टली। रिलीजन, जेंडर, कलर, व्हाटएवर इट इज, आप डिस्क्रिमिनेट कर ही नहीं सकते हो यहाँ पे। आपको अंदर से नहीं लगता कि मेरे को भाई डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए किसी के साथ। अमेजिंग। और ये हमें सीखना चाहिए एग्जैक्टली इस जगह से कि इसने इतना स्पेस प्रोवाइड किया है हर किसी के लिए। एग्जैक्टली। So in Dubai, you have मंदिर, you have mosque, you have church, you have गुरुद्वारा। जो अगर आप देखोगे, अगर कोई इंडियन फेस्टिवल है तो उस टाइम पे जो टेम्पल है उसके आसपास रश कितना होता है। बट ऐसा नहीं होता कि लोग फोन करके कंप्लेंट्स कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। इवन दो इन चर्च देयर आर लाइन्स उनका फेस्टिवल्स होता है, बट कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा। एवरीवन सेलिब्रेट्स इट विद दूसरा रिलीजन। सब लोग सब मिलके साथ में सेलिब्रेट करते हैं, एंड इवन दो हर एक त्योहार की छुट्टी मिलती है। So that's the main thing। तो यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन एंड एवरीथिंग यहाँ पे है। और ये मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। कोई भी आदमी को अगर इंसान को अपना घर डिसाइड करना है तो उसमें ये चीज मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा डिटरमाइन करती है। See, as an Indian and Pakistani, लोगों को क्या चाहिए रहता है, we want a space जहाँ हम खाना बनाए। तो we know हमारा जो खाना होता है that is more on spicy side, तो उसमें तड़का भी लगता है, सब होता है और शौक उड़ता है। ठीक है, तो they want a closed kitchen and they want कि वो सब बाहर ना जाए, they want proper exhaust with it। तो ये वाली चीजें हमें एज अ रियल एस्टेट एजेंट फेस करनी पड़ती है। बट कभी भी आप एक कम्युनिटी में जाके पूछोगे दैट एन इंडियन और a Pakistani is living beside you, you have any problem, they will say no। और ऐसे कोई बोल भी नहीं सकता क्या है। बोलना चाहेगा तो भी प्रॉब्लम होती ही नहीं, तो क्यों बोलेगा? लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ लोग एक दूसरे के साथ घुल मिल के उतना रहते हैं। सही बात है। क्यों? क्योंकि सी फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन इज बिजी इन देयर वर्क लाइफ, एंड आफ्टर देयर वर्क लाइफ एवरीवन सिट्स टुगेदर, हैव अ कप ऑफ टी। यहाँ कड़क पीते हैं, सब साथ में बैठ के कड़क पी रहे हैं, एंड दे एंजॉय देयर लाइफ। वो अपने पैसे कमा रहे हैं। अपने इंडिया में कहावत है ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। यहाँ पे खाली दिमाग होता ही नहीं है, तो वो शैतान भी का घर कहाँ बचेगा?
you stay in harmony over here. परफेक्ट। अभी हमने सब बात कर ली, अब मैं एक एम्बिशियस आदमी हूँ, मुझे पैसा कमाना है। तो क्या जो लोग बोलते हैं कि दुबई इज फेक, यहाँ पे सिर्फ बाहर से चमकी है, आप यहाँ पे अगर अपना बिजनेस रजिस्टर करो, सो व्हाट इज द स्कोप एंड ग्रोथ दैट यू सी इन समवंस अर्निंग पोटेंशियल इन दुबई? लाइक इज एन इन्वेस्टमेंट ऑल्सो अर्निंग पोटेंशियल बोथ? जैसे कोई करियर शिफ्ट कर रहा है, कोई कंपनी इन्वेस्ट कर रहा है, अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, हाउ डू यू सी कि हाउ मच इज योर मनी गोइंग टू ग्रो इन दुबई? See, it completely depends on you, right? Dubai has given you the option of an open world. You have an option of an open world. It's center of the world. You can trade in, trade out from Dubai to any part of the country, any part of the world. In fact, आप किधर भी अपना सामान बेच सकते हो. For instance, if you're a trader जो एक products को यहाँ से वहाँ बेचता है, Dubai is in the center of the world. Product पहुंच जाएगा, right? जैसे आप बोल रहे हो पैसा कमाना, of course if you have the ambition to make your money double, you will make it, but Dubai helps you ease it as in Dubai आपको facility देता है, वो infrastructure देता है, वो safety security in terms of contracts and everything, वो आपको ये सब देता है कि आप उसके ऊपर काम कर सको instead of tension लेते रहो in the back of your head. तो the UAE ने in general, UAE not just Dubai, in general UAE ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि आप ग्रो तो करोगे ही, but the only thing is of course you have to work hard for it. Nothing comes for free here. Not just here, in any place in the world you don't get anything for free. You work hard, you get the opportunities, you grab on it, you work on it. Instead of worrying about the rules, laws, and everything, you just keep it simple. Work on what you have decided to work on. As simple as that. अमेजिंग। एंड अभी शुभम, मैं आपसे पूछूंगा, किसी को अपना पैसा बढ़ाना है, रियल एस्टेट से बढ़ाना है, विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट एसेट इन द होल वर्ल्ड, एसेट क्लास इन द होल वर्ल्ड, वेयर विल देयर मनी बी इफ दे इन्वेस्ट इन दुबई? See, firstly, when you're planning to invest, you have to make sure कि आप तीन चीजों में हमेशा अच्छे हैं. First is developer, and then second is location, and third is payment plan. इन तीन चीजों पे जब आप अच्छे हो, you don't have to worry about anything in the world. अब बात आती है दुबई की. दुबई के अंदर यू आर ट्रस्टिंग दोज डेवलपर्स जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड से आके यहाँ पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, कम्युनिटीज बना रहे हैं. अब जिसके अंदर आप ट्रस्ट कर रहे हो गवर्नमेंट डेवलपर्स पे, ठीक है? जब आप गवर्नमेंट डेवलपर के साथ जाते हो, आई नो देयर आर मेनी गुड डेवलपर, बुटीक डेवलपर्स जिनकी अपन बात कर, ठीक है? बट द थिंग इज व्हेन यू आर ट्रस्टिंग एज अ न्यू पर्सन, I'll always suggest you to go with a government developer. Why? MR in the whole world, MR is one of the biggest, right? But in Dubai, MR is the semi-government, but MR ने आता Dubai बनाया है. We know it. ठीक है? MR ने Burj Khalifa बनाया है, MR ने downtown malls बनाया है. So when you are going with MR ने खुद का एक statement होगा that 20 साल के अंदर only जितने भी communities launch किए हैं, कभी एक इन्वेस्टर ने उस पर लॉस नहीं किया. It means when you are good with developer, you will not make the loss. Second thing, location. आज मैं अगर बात करता हूँ पाम जुमेरा के अंदर मैं कुछ खरीदना चाह रहा हूँ, I go for पाम जुमेरा एंड मेरे को कुछ पसंद आया, मैंने खरीद लिया इन सेकेंडरी मार्केट, तो मैं उसके साथ सही जाऊँगा कि गलत जाऊँ, वो वाली चीज़ डिपेंड करती है मार्केट रेट के ऊपर फॉर द पर्टिकुलर लोकेशन. बट जब मैं साउथ में हूँ, हमारे ये दुबई साउथ लोकेशन पे, अगर दुबई साउथ लोकेशन के अंदर मैं कुछ खरीद रहा हूँ तो आई विल ऑलवेज गो राइट. वाई? बिकॉज मैं अच्छा डेवलपर देखा, मैंने एक अच्छी लोकेशन देखी. नाउ द थर्ड पॉइंट इज पेमेंट प्लान. पेमेंट प्लान एक अच्छा रोल क्यों प्ले करता है दुबई में? बिकॉज यहाँ पे इन्वेस्टर जिस माइंडसेट से आता है दैट आई विल इन्वेस्ट अ सर्टेन अमाउंट इनटू द रियल एस्टेट एंड उसके बाद I will get the capital appreciation on the property value and then I'll exit the market. ये प्लान रहता है यहाँ पे हर एक इन्वेस्टर का. So what they do is they come up, they pay 40% of the property value or the 50% of the property value according to developer. They get the NOC, they sell the property, whatever the capital appreciation comes in 2 years or 3 years, they take that capital appreciation
एंड दे एग्जिट द मार्केट फॉर द पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, उसको वो दूसरी जगह लगाते हैं। एंड अगेन, अब जैसे अगर मैंने 10 लगाया और 10 लगा के मुझे 5 का प्रॉफिट मिला, मेरे पास अब 15 है, ठीक है, वो 15 में कहीं और लगा। So that is the thing what comes in investor mindset और investor calculations. Right? जो मेरी जो बात हुई कि ये 3 थिंग्स इंपॉर्टेंट है, मैं उसमें फर्स्ट चीज़ पे आपको पूछूंगा डेवलपर कि क्या हमें ब्रांड पे जाना चाहिए या क्या हमें प्राइस पर स्क्वायर फीट पे जाना चाहिए? See, when you are looking at price per square feet, ठीक है, तब ऐसा नहीं है कि आप कोई भी डेवलपर देख लो। आज बहुत सारे प्राइवेट एंड न्यू डेवलपर्स हैं जो मार्केट में काम कर रहे हैं, जो एक अच्छी लोकेशन पे है, बट हाँ, उनके रिटर्न इतने ज़्यादा नहीं है। बहुत से डेवलपर्स होते हैं जो अफोर्डेबिलिटी को फोकस करते हैं, बहुत से डेवलपर्स होते हैं जो इन्वेस्टर बेस को फोकस करते हैं। अब जब अगर आप इन्वेस्टर की तरह एंटर कर रहे हो, ठीक है, तो आप इन्वेस्टर वाले डेवलपर्स को देखोगे, ठीक है, या आप रहना चाहते हो तो आप अफोर्डेबिलिटी पर फोकस करेंगे। बट देयर आर सम डेवलपर्स जो आपको दोनों प्रोवाइड करते हैं, जो कम्युनिटीज बना रहे हैं, उनका काम ही ये है, वो अफोर्डेबिलिटी एज वेल एज अप्रिसिएशन पर फोकस करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका क्लाइंट से लिमिटेड नहीं है, उनका क्लाइंट से थोड़ा बड़ा है। जो खुद के लिए लेना चाहता है वो भी आता है, जो इन्वेस्ट करके कैपिटल अप्रिसिएशन लेना चाहता है वो भी आता है। तो इसलिए डिपेंड करता है आप किस डेवलपर पे जा रहे हैं। अगर आप ब्रांड वैल्यू के साथ जा रहे हो, विच आर बिग डेवलपर्स, जिसमें ऑब्वियसली वी हैव सम बिग नेम्स, जैसे एमआर हो गया, दुबई प्रॉपर्टीज हो गया, उसके बाद आपका अल्दार हो गया, अराडा हो गया, दीज आर गवर्नमेंट डेवलपर्स। अब गवर्नमेंट डेवलपर के साथ सबसे अच्छी चीज आपके पास ये है, उनके पास फंड्स शॉर्ट नहीं होंगे कभी भी। हमें सबसे बड़ी दुबई में अगर कोई दिक्कत आती है डेवलपर्स के साथ, फंड शॉर्ट होने की वजह से दे आर नॉट एबल टू डिलीवर द प्रोजेक्ट, ठीक है। ये पहले होता था, आफ्टर एस्ट्रो ये सब चीजें बंद हो चुकी है, बट स्टिल अगर फंड लेस है तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, ठीक है। बट विद बिग नेम्स एंड बिग डेवलपर्स ये कॉम्प्रोमाइज पॉसिबल नहीं है। यू विल ऑलवेज गेट व्हाट दे हैव प्रॉमिस्ड। अब सेकंड क्वेश्चन ये है, इसका ही फॉलो अप है कि आपने बोला पेमेंट प्लान देता है हर एक डेवलपर हमें, और सारे डेवलपर्स देते हैं जो कि बैंक नहीं एक्चुअली डेवलपर्स है। तो मुझे एक्चुअली कितना पैसा चाहिए दुबई में अपना रियल एस्टेट का जर्नी स्टार्ट करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए? सी अगर मैं दिरहम्स की बात करूँ तो 550K दिरहम्स इज व्हाट यू रिक्वायर। अगर आईएनआर में बात करूँ तो 1.5 करोड़ से यहाँ पे प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाती है। एंड देन अगर मैं लिमिट की बात करूँ तो स्काई इज द लिमिट। यहाँ पे जितनी लग्जरी आप चाहोगे यू कैन गेट दैट लग्जरी इन व्हाटएवर प्राइस टैग इट इज। सो दैट इज द थिंग, बट द स्टार्टिंग इज फ्रॉम 550K इन दिरहम्स। Am I right? एंड व्हाट अबाउट द पेमेंट प्लान कि क्या मुझे 1.5 करोड़ पूरा एक साथ देना है? नहीं, दुबई की सबसे अच्छी चीज यही है दैट यू जस्ट नीड 20 + 4% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू एज अ डाउन पेमेंट। और प्रॉपर्टी आपके नाम पे रजिस्टर हो जाती है। देन यू नीड टू पे मोर 20%। 40% इज व्हेन यू गेट द एनओसी फ्रॉम द डेवलपर। जब आपको एनओसी मिलती है, इट मींस योर इन्वेस्टमेंट इज डन, नाउ यू कैन गेट रिटर्न्स ऑन इट। अब डिपेंड करता है आप उसको रखना चाहते हो कितने टाइम तक, वो आपके ऊपर है। बट 40% इज द मिनिमम प्लस 4% ईएटी एंड सम अप्रूव चार्जेस एज वेल, जो आपको रखना जरूरी है अपने अकाउंट में फॉर इन्वेस्टिंग इन दुबई। तो मुझे बस जो अपने 5,50,000 बोला उसका सिर्फ 40% इंतजाम करना है कोई प्रॉपर्टी में एंटर करने के लिए, प्रॉपर्टी मार्केट में। Sure. And I will be, able to apply for all the benefits, Emirates ID, everything. Sure. Nice. Or second is, what is the rental yield if I buy a property in Dubai? See, if you compare it with any other country, obviously Dubai is on the top, but it starts from 7% and goes up till 15 to 20% as well. Because यहाँ पे हम सिर्फ इस चीज की बात नहीं करते हैं that a long term rental can help you out. Dubai is all about short term rentals as well. यहाँ पे आपको short term rentals भी 14%, 15% तक रिटर्न दिलाता है हमें प्रॉपर्टी, which goes up till 20% as well. Nice. So the rental yield is basically आपका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न बहुत ज्यादा है। Obviously. अभी भरत आपसे कि आई एम मूविंग टू दुबई, व्हाट इज द प्रोसेस, हाउ डू आई रजिस्टर माय बिजनेस? All right. So first things first, you get in touch with us. Start with of course. कॉल यू। Call us, yeah. And then what we do and how does the process go is very, very simple. What we'll do is we'll understand your business plan. Once you share us your business plan, we make a framework in a certain way.
we choose the right authorities for you. Either you should go for a mainland company, or you should go for a free zone company, or you should go for an offshore company. There are various type of companies that you can go for. Once we have that conclusion from our end that this is the type of company that you should form, then we ask from you like how many visas do you want, how many partners will be there in the company, will all of them require a visa. So let's say you say I'm just a single owner, and I of course need a visa. I'll need my family to be sponsored as well on my visa, and I'll maybe hire a few employees down the line, right? So we suggest you accordingly. Then it's a back and through conversation. We share you the proposal. You go through the proposal. So the best part about StartBiz Global over here is that we don't share you a proposal just with our fees. So we mentioned the government fees as well, and there are certain fees that might go up or down in pricing terms. But our concept work is very simple. You do not have to pay a single penny more than what you actually incur. So let's say the government cost is 15,000 dirhams of the entire setup. An example. So you pay exactly 15,000 dirhams, right? We share you the receipts, we share you the invoices, and you pay only as per actuals. Unlike a certain other companies that I know of, do charge a higher fee, right, on the government cost. We don't do that. We have a very transparent way of working. What we do is we'll share you the government receipts, you pay as per actuals. Of course, in certain cases, let's say it's a mainland, we charge a consultancy fee on it because of the work that we do. And in free zones, we also don't charge you consultancy fee because we do get our commissions from the free zone itself. So there is no point of charging a consultancy fee. And now back to the question, like what all documents are required, what's the process. So once we are finalized with what to go with in the future, like in instance type of company that you're planning to set up, the only documentations that we need from your end to start your company and get it operational is one is your passport copy. That's a must. Second is your email address, mobile number, basic information. Third is one of the most crucial step, which is three names for your company. So usually we take three suggested names from you for the company. Once you share that, we get it checked with the authorities if the names are available in the market or are already taken. If the names are already taken, you cannot, of course, take it. If it's still there in the market and not been taken, then we finalize the name for you. We book the name for you. And then moving forward, we do all your processes step by step. And basically, these are only the documents in the process that you need to follow. Let's say your company has been established, now you need a visa. So for the visa, what we do here is we arrange your medical Emirates ID. The process is very simple. First, your company gets registered. Second is your visa process, where we share you an entry permit. Now, let's say you're outside the country. Let's say you're back in India or any other country. We share you the entry permit while you're outside the country. You use that entry permit, enter the UAE, and get your medical done. Once your medical is done, we proceed with your biometric appointment for your Emirates ID. Once your biometrics is done, your visa has been released, you get your Emirates ID delivered within 1 to 2 working days, and then we start with your banking process. Of course, you're staying in the UAE, you need a bank account for yourself as well as for your company. Right? So we do that setup for you. Once all of this is done, then we start hiring. You start hiring employees for your company. We start giving them visas. The process goes similar, and of course, if you and you can also do this while you're inside the country. Right. So it's not mandatory that while you're outside the country only then I can send you the visa. While you're inside the country, we can also do the entire process. You don't need to exit the country at any point of time. So भरत, अभी मुझे मूव करना है मेरा बिजनेस, रजिस्टर करना है यूएई में, प्रोसेस क्या है? प्रोसेस बहुत सिंपल है. 3 प्रोसेस होते हैं जो बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए होते हैं. नंबर 1, कंपनी रजिस्ट्रेशन, जो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करनी होती है, जिसके लिए बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगते हैं. दैट इज योर पासपोर्ट, आपका ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर,
और 3 सजेस्टेड नेम्स कंपनी के लिए। अब जो 3 नाम होंगे वो हम लेके जाएंगे, गवर्नमेंट से चेक कराएंगे अगर वो अवेलेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो वी कम बैक टू यू और फिर आप और नेम्स देंगे। अगर अवेलेबल है तो हम आपके लिए बुक कर देंगे, राइट। सेकेंड स्टेप इज आपका वीजा प्रोसेस। वीजा प्रोसेस, मान लीजिए आप इंडिया के अंदर है, आपकी कंपनी दुबई में इंडिया में बैठे बैठे दुबई में खुल चुकी है। हम आपको वीजा भेजेंगे यहाँ से, जिस वीजा पे आप दुबई आएंगे, आपका मेडिकल और बायोमेट्रिक्स का अपॉइंटमेंट आप हैंडल करेंगे एंड आफ्टर दैट लाइक हम आपके लिए अरेंज करके देंगे और बायोमेट्रिक्स और मेडिकल के बाद आपकी रेजिडेंसी वीजा आ जाएगी। जैसे ही रेजिडेंसी वीजा आती है, थर्ड प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जो आपकी कंपनी का बैंक अकाउंट और आपका पर्सनल बैंक अकाउंट के लिए। जो कंपनी का अकाउंट और पर्सनल बैंक अकाउंट आपको बहुत जरूरी होता है कि इन टर्म्स ऑफ रनिंग बिजनेस और आपके डे टू डे ट्रांजैक्शंस के लिए। दिस इज द मेन इंटायर स्कोप ऑफ वर्क दैट वी डू फॉर ये यू। तीनों चीज कितने दिन में हो जाती है? ये सब मिला के आपका हार्डली 7 to 10 वर्किंग डेज लगते हैं। 7 to 10 वर्किंग डेज के अंदर आपका इंटायर प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब इसके अंदर भी जो कंपनी फॉर्मेशन वाला जब मैं बात कर रहा था, तो उसके अंदर जब हम आपसे पूछेंगे कि किस टाइप की कंपनी आपको खोलनी है, कितने वीजा चाहिए होंगे, उससे डिपेंडेंट रहेगा कि आप मेनलैंड लेंगे या फ्री जोन। हम आपको ऑफकोर्स कंसल्ट करेंगे। अब जब हम कंसल्ट करेंगे तो मेनलैंड के अंदर अगर आप मेनलैंड खोलना चाहते हैं तो ये प्रोसेस फॉलो होगा, फ्री जोन खोलना चाहते हैं तो भी यही प्रोसेस फॉलो होता है। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन मेरे ख्याल से इसी में लोगों को होता है कि मेनलैंड खोले या फ्री जोन खोले। करेक्ट। सो इसको मैं एक बेसिक आउटलुक देता हूँ कि मेनलैंड और फ्री जोन के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है। जितने भी आप दुकानें यहाँ पे बीच रोड पे देखते हैं या रोड्स पे देखते हैं, फुटपाथ पे देखते हैं, जो भी दुकानें आप देखते हैं वो सारी मेनलैंड रजिस्टर्ड है। मेनलैंड के अंदर मेन काम होता है कि आप B2C करें, बिजनेस टू कस्टमर डील करें। B2B भी कर सकते हैं बट उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है B2C करना, राइट। फ्री जोन कंपनीज मोस्टली B2B पे ध्यान देती है। फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिंग कंपनीज हो गई जो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर ज्यादा इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया से कोई प्रोडक्ट यहाँ पे मंगवाना है, यहाँ से प्रोडक्ट इंडिया भेजना है, या US भेजना, रशिया भेजना, एनी अदर कंट्री, तो उनके लिए सजेस्टेड होता है कि एक फ्री जोन कंपनी के साथ डील करें। करेक्ट। तो ये एक डिफरेंस तो ये हो गया। मेनलैंड के अंदर आपका ऑफिस रिक्वायरमेंट होना मैंडेटरी है। दैट मीन्स आपका ऑफिस होना बहुत जरूरी है। फ्री जोन के अंदर जो फ्री जोन है वो अपने आप में ही आपको एक फ्लेक्सी डेस्क देता है जो आप यूज कर सकते हो एज एन ऑफिशियल एड्रेस ऑफ योर कंपनी। These are the two main differences between a mainland and a free zone. सो मुझे ये बताओ कि अब ये सब चीज़ में एक्चुअली खर्चा कितना होगा? देखो, मेनलैंड हो या फ्री जोन हो, हमारी कंपनी स्टार्ट दिस ग्लोबल का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, व्हाट वी कीप अ कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। क्लाइंट और हमारे बीच में एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी रहती है। अनलाइक अदर कंपनीज, हम आपको ओवरचार्ज नहीं करते ऑन द गवर्नमेंट फीस। आपका जो गवर्नमेंट का कॉस्ट होगा, आप सिर्फ वही कॉस्ट पे करेंगे एंड हम आपको उसकी इनवॉइसेस देंगे। जो हमने आपके अगेंस्ट में पे किया है उसकी प्रॉपर इनवॉइसिंग आपको मिलेगी फ्रॉम द गवर्नमेंट इटसेल्फ, राइट। सो लेट्स आपकी कंपनी खोलने का खर्चा आता है 15,000 दिरहम, गवर्नमेंट फीस आती है आपकी, या 5,000 दिरहम, 10,000 दिरहम, जो भी। फॉर इंस्टेंस 15,000 दिरहम आपका गवर्नमेंट का कॉस्ट आता है, तो यू ओनली पे द 15,000 दिरहम्स एज ए गवर्नमेंट फी। उसके ऊपर हम कोई एक्स्ट्रा सरचार्ज या कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ऐड करते। एंड रादर देन दैट हमारा क्या प्रॉफिट, हमारा सिर्फ एक सिंपल कंसल्टेंसी फी है। जो कंसल्टेंसी फी हम चार्ज करते हैं ट्रांसपेरेंट होके कि ये हमारी कंसल्टेंसी फी है और ये गवर्नमेंट कॉस्ट है, एज सिंपल एज दैट। तो मतलब मुझे ये बताओ कि ऐसे कौन से मिसकंसेप्शन है जो आपने सुने हैं और लोगों के दिमाग में है दुबई में कंपनी फॉर्म करने के रिगार्ड? करेक्ट, ऐसे बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है। फॉर एग्जांपल, लोगों के माइंडसेट में भी आज तक ऐसा है कि 51% ओनर एक लोकल अमीराती होना जरूरी है और आपको यूएई के अंदर कंपनी खोलनी है, व्हिच इज नॉट ट्रू। आज के टाइम पे यूएई हैज ऑलरेडी चेंज्ड द रूल्स। अभी कोई भी एक्सपैट इस कंट्री के अंदर कंपनी खोल सकता है और 100% ओनरशिप सिर्फ एक एक्सपैट की हो, ऐसा भी हो सकता है विदाउट अ डाउट। ठीक है। दूसरा मिसकंसेप्शन एक ये है कि दुबई के अंदर कंपनी खोलना बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आप कंपेयर करेंगे इंडिया और एनी अदर कंट्री से, ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव है, बट यूएई के अंदर कंपनी को ऑपरेट करना कंपैरेटिवली बहुत इजी भी है।
So when आप प्राइस भी पे कर रहे हैं तो कंफर्ट के लिए पे कर रहे हैं, right? And then ease of operations, opportunities, infrastructure, economy, many things, right? और दूसरा मिसकंसेप्शन ये है कि दुबई के अंदर वीजास आप नहीं दे सकते अपने स्पॉन्सर्स को. So of course you can give your sponsors, आप अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, अपनी मदर एंड फादर को, आप सबको वीजास दे सकते हैं. These are the common misconceptions, you know, and of course all भी होंगे, but as of now these are the common misconceptions in people's mind. ओके, अभी शुभम आपके लिए मुझे पूछना है कि क्यों डेवलपर का ब्रांड जरूरी है? See, developer का बैंक की ज़रूरी है, आपको बताता हूँ. As we know, Dubai market is open for each and everyone, all around the globe. ठीक है. तो क्या होता है ना, कभी कभी कुछ डेवलपर्स जो है वो नए आए हैं मार्केट में, तो उनको एस्क्रो अप्रूव नहीं होता है. ठीक है. तो वो क्या करते हैं, वो अपने पर्सनल अकाउंट में पेमेंट्स लेते हैं एंड एस्क्रो कंपनी अकाउंट ही है, उसमें पेमेंट्स ले लेंगे. बट एट द टाइम ऑफ हैंडओवर क्या होता है, अगर आपका एस्क्रो में होता है तो गवर्नमेंट अप्रूव होता है. ठीक है. तो गवर्नमेंट आपके डेवलपर को बोल सकती है कि आपको टाइम पे डिलीवर करना पड़ेगा. अब जब आपको गवर्नमेंट में पैसा नहीं, तो आप गवर्नमेंट को कुछ नहीं कर सकते ये बोलने के लिए कि हमारा टाइम पे हैंड ओवर दे. तो डेवलपर कैन टेक एनी टाइम टू डिलीवर देयर प्रोजेक्ट. ठीक है. तो उस वजह से ये होता है. मेरे कुछ थे पुराने इन्वेस्टर्स जो ऐसा कुछ होने के बाद मार्केट में इन्वेस्ट करने से डर रहे थे. उन्होंने दिया था ऐसे बेटर विदाउट एस्क्रो. बिल्कुल ऐसे बहुत से, क्योंकि सी एज यू ऑलरेडी नो, Dubai is open for everyone to invest in as well as get into the developments. तो कंपनी खोल के they start developing, तो वो easy process है उनके लिए. But what happens is after that, जब मनी क्राइसिस आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, तो डेवलपर को अपना प्रोजेक्ट रोकना पड़ता है. There are many buildings, जो ओल्ड बिल्डिंग्स हैं उनका कंस्ट्रक्शन रुका हुआ है. बट वो अगर एस्क्रो अकाउंट में पैसा होता तो वो डेवलपमेंट रोक भी गया होता, तो इन्वेस्टर को उसका पैसा वापस पहुंचा. ये वाली चीज है बस. सो अभी जो फाइनल मुझे क्वेश्चन है कि हाउ आर यू गाइस वर्किंग टुगेदर इन यूएई? So देखिए, we both have a complementary business, like services that we are providing are very complementary in nature. कैसे complementary है? कोई भी इन्वेस्टर अगर यूएई से इंडिया से यूएई आता है, कोई भी इन्वेस्टर इंडिया से कोई यूएई आ रहा है, तो उस केस के अंदर either he wants to set up a company, पहले वो कंपनी खोलता है, कंपनी खोल के उसका प्रॉपर अपना सेटअप बिठाता है, एंड देन ऑफ कोर्स वो अपनी फैमिली को दुबई बुलाता है. Right? जैसे वो दुबई बुलाएगा, of course he needs a house to stay in. So that's where Shubhamji comes in place and, you know, takes care of the client. And honestly, in the market, Stardust Global has been for a while now, and so has Apex Revenue. So we have that trust factor built in our clients as well as in each other. This trust factor helps us, like मेरे पास कोई client आया, so I can refer them to the right people, and they can suggest the right properties that are available in the market for the client to obtain and stay in, right? And plus, along with that, investment and other things as well. So I think this is how we complement each other's businesses and have been growing in the market. Amazing. So yes, we are Apex in reality. We focus on portfolio management. It is a full portfolio management company. You're not just brokers, which comes into the market. They will work on your demand and give you the prop. And we work on the portfolio. So whatever the clients have been built, we give them an end-to-end solution in which the golden visa comes, in which if they want to start up their business in Dubai, that comes. So then we have to coordinate together and we have to work together for this particular process. Because we are good with the good investments, we are good with the good portfolio, but Savage is good with the extra part which comes into our room. So that is how we coordinate with. Amazing that is. So yes, मैं फाइनली मेरे व्यूअर्स को ये बोलना चाहूंगा कि आपकी कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चंस है इनसे, प्लीज नीचे जाओ, इनके सोशल मीडिया हैंडल्स ढूंढो, डायरेक्टली इनसे कांटेक्ट करो, एंड यू गाइस विल डेफिनेटली फाइंड अ जेन्युइन सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम.
So thank you guys for doing this podcast with me. Thank you so much. Thank you so much for having us.